हाय। आज हम बात कर रहे हैं सीबीटी इकोनॉमिक्स को लेकर के। इकोनॉमिक्स एक डोमेन सब्जेक्ट है एंड मोस्ट सॉट आफ्टर कोर्सेज ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफर्ड अंडर सीबीटी। इकोनॉमिक्स as a professional program to help you to build your career post graduation and in different competitive exams as well. So be the choice of being a civil servant in the future or thinking of management as a career, economics is of course one of the most enabled source to help you to understand the economy aspect of an organization, be it a government organization or a private organization, say it corporate or government system. So CVT economics is how different from that of other economics we study in our different programs. For that, today we are discussing syllabus, question paper analysis, and important chapters from where the questions been asked, strategy how to deal with, and certain tips what not to do or what to do. So with this much, if we go ahead, very first thing about any preparation of any exam, the syllabus. I recall one of my professor used to say कि एग्जाम की तैयारी तभी शुरू होनी चाहिए जब तुम्हारा सिलेबस तुमको बाय हार्ट हो, ऑन टंग हो. तो फॉर दैट पर्पस सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग, इंटर रिलेशन बिटवीन द चैप्टर्स एंड व्हाई द चैप्टर्स आर केप्ट फॉर दैट एग्जाम, ये समझना आवश्यक होता है. सो अगर आप पहले चीज को देखें तो यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पूछा गया है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दीज आर द टू पार्ट्स. इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग द expenditure pattern of a household and making the same implemented for a country. So if the same is being done at larger scale, that is macroeconomics. Of course, at larger scale, the situations, factors and driving factors would always be different than that of at a small scale. Of course, the nature of expenditure may not be same, but of course, certain factors remain same. Consumer behavior remains same. The expenditure by an organization or an individual always has a factor, common factor, how I get maximum out of the list investment or expenditure. So utility should be increased. Economics as a subject is very interesting. And in that aspect, we have to understand what is microeconomics. Again, central problems. Central problem does not refer to problems of central government. That is central problems of microeconomics. So that's the first chapter. I'll come to a slide where I'll tell you from this chapter how many questions been kept. So consumer behavior and demand. Every person who consumes any product or service is a consumer. And being a consumer, you have certain significant characteristics which you have. Now, whatever act we do in our life, हम जीवन में जो भी करते हैं उसमें कोई लाइन ऑफ बाइफर्केशन नहीं हो सकता कि इनमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं और कौन सी पर्सनल एक्टिविटीज हैं. इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूं. आप सोचिए, एक नर्स का घर में अपने बच्चे का देखरेख करना या अपने परिवार के किसी भी मेंबर की देखरेख करना और हॉस्पिटल में किसी पेशेंट की देखरेख करना, दोनों ही एक्टिविटीज सेम है जिसमें नेचर ऑफ वर्क सिमिलर होता है, लेकिन डिफरेंस कहां होता है?
At home, she is not getting paid, but at hospital, she is getting paid for the same. तो एक ही एक्टिविटी ड्यू टू प्लेसियल चेंज, जगह बदलने के चलते इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई और दूसरी जगह वो सब्सटेंशियल या इमोशनल अकम्प्लिशमेंट की एक्टिविटी बनी। तो जहां भी फिनांस या मनी एस्पेक्ट आएगा, मनी से रिलेटेड ह्यूमन नेचर के स्टडी को ही इकोनॉमिक्स कहा जाता है। कई बार आदम स्मिथ की बात करोगे आप, रॉबिन्सन की बात करोगे, पीगू की बात करोगे, मार्शल की बात करोगे, सबने डिफरेंट वे में इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। किसी ने कहा यह धन का विज्ञान है, तो किसी ने कुछ, लेकिन लार्जर स्केल पर जहां सहमति बनी सबकी, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ ह्यूमन विथ इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ सोसाइटी और इकोनॉमिक रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज, दैट वे। इसको एक और उदाहरण से अगर हम समझें, एक माँ का अपने घर में लिविंग एरिया में डाइनिंग टेबल पर अपने बच्चे को कहना कि बेटा एक और रोटी ले ले, और एक रेस्टोरेंट में उसी माँ का एक वेटर के रूप में या एक सर्वेंट के रूप में कहना कि कस्टमर को कि एक और रोटी आप ले लीजिए, both the activities are similar but the emotion behind get changed। जब माँ अपने घर में बच्चे को कहती है एक और रोटी ले ले, वहां केयर होता है। जब हॉस्पिटल में एक वेटर एक क्लाइंट को कहता है या एक विजिटर को कहता है कि और क्या लेंगे, ये ले लीजिए, ये बेस्ट है, वहां ऑब्जेक्टिव शायद ड्यूटीफुल होने का हो, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एस्पेक्ट को या प्रॉफिट एस्पेक्ट को आप मिनिमाइज नहीं कर सकते। सो पहले तो ये हमें समझना है कि किसी भी एस्पेक्ट में इकोनॉमी और नॉन इकोनॉमिक इश्यूज सेपरेट नहीं होते, सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली वो डिफाइन हो जाते हैं। तो इसी सेंस में हमारा जो दूसरा चैप्टर होता है वो है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। हाउ अ कंज्यूमर्स बिहेवियर डिसाइड्स द डिमांड एस्पेक्ट ऑफ एनी सर्विस और गुड। That is the second chapter. Now coming to third one, national income and related aggregate। अब जरा पहले चैप्टर को देखिए, वहां पर आपको इंट्रोड्यूस किया गया माइक्रो इकोनॉमिक्स से, उसके सेंट्रल प्रॉब्लम पर बात कर ली गई। दूसरे चैप्टर में एज अ कंज्यूमर आप खुद को समझिए। आप देखते होंगे कहीं भी इंटरव्यू को जाते हैं तो अपने बारे में बताने का पहला क्वेश्चन होता है, तो एज अ कंज्यूमर हाउ यू रिएक्ट विथ इकोनॉमिक सिचुएशन, एंड अगेन उसका डिमांड पर क्या इंपैक्ट होता है, दूसरी चीज हमने समझ ली। क्योंकि एक नेशनल इकोनॉमी जो बनती है वो किन चीजों से बनती है? डिमांड बाय अ कंज्यूमर एंड बदले में मिला पेमेंट। ऑफ कोर्स जब भी कोई चीज खरीदी या बेची जाती है, आम भाषा में खरीदना बेचना कहते हैं, अगर इसको थोड़ा हायर स्केल पर ले जाके बात करें तो ये एक्सचेंज ऑफ अथॉरिटी होती है। जैसे एक मोबाइल एक दुकान में पड़ा हुआ था, द ओनर ऑफ दैट शॉप वो उसका मालिक था, आपने बदले में उसको पेमेंट किया। लेट्स से आपने 10,000 रुपए का कोई मोबाइल लिया, आपने 10,000 रुपए उसको पे कर दिए। अब वो मोबाइल आपके हाथ में पकड़ा के कहता है कि ये लीजिए सर, नाउ आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस मोबाइल, राइट फ्रॉम द टाइम आई रिसीव्ड द पेमेंट अगेंस्ट इट, यू आर द ओनर ऑफ दिस मोबाइल। सो बदले में क्या चेंज हुआ? मोबाइल रिमेन सेम बट द ओनर गेट चेंज्ड। सो कोई भी चीज का बाई होना, सेल होना इकोनॉमिक सेंस में केवल एक्सचेंज ऑफ अथॉरिटी होता है और से ट्रांसमिशन ऑफ अथॉरिटी होता है। एक आदमी से दूसरे आदमी तक उसका ओनरशिप शिफ्ट होना, ये बाइंग या सेल है। अब ऑफ कोर्स जब ये दो ह्यूमन बीइंग के बीच होता है तो दोनों ही ह्यूमन बीइंग का इंडिविजुअल पर्सनालिटी कहीं ना कहीं इसको इंपैक्ट करेगा। एक कॉमन कंसेंसस बनेगा कि जो बायर है वो चाहेगा कि मुझे कम से कम पैसे में ये अथॉरिटी मिल जाए, जो सेलर है वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा पैसे मुझे इस अथॉरिटी ट्रांसफर में मिले, बिकॉज अभी के बाद मैं इस सामान का ओनर नहीं रह जाऊंगा। तो कहीं कहीं स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में हम इसको ले जाते हैं, कहीं कहीं बार्गेनिंग की बात आती है, एंड नंबर ऑफ थिंग कम्स। सो इस पूरे बिहेवियर को समझना, नेशनल
कंज्यूमर बिहेवियर की बात हो गई, और तब आप मूव करते हो नेशनल इनकम की तरफ, जहां पर जब ये सारी एक्टिविटीज होती हैं उसका एक एक्यूमुलेटिव मनी वैल्यू होता है। तो नेशन का वो मनी वैल्यू क्या है, दैट इज डिसाइडेड। आपने जीडीपी की बात करी, मैं इकोनॉमिक्स में बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लेकर के बात कर रहा हूं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कई बार ये क्वेश्चंस आता है, या मैं आपसे कहूं, एक बार सोचिए वीडियो को पॉज करके एक सेकेंड। जीडीपी में लेट्स से मैंने पेप्सी पिया, अब पेप्सी का बोतल बनाने वाली कंपनी कोई और है, पेप्सी बनाने वाली कोई कंपनी कोई और है। पेप्सी ने भी अपना किया पेमेंट, इनकम जो भी टैक्सेशन उस पर अप्लाइड है वो भी किया। अब यहां डबल टैक्सेशन नहीं हो पाता है, इसलिए कि जो बोतल बनाने वाली कंपनी है वो इंफॉर्मेशन देती है कि इस रिसीट नंबर से मैंने इसके इनकम का पेमेंट कर दिया है, एंड द सेम इज रेफर्ड बाय द नेक्स्ट कंपनी। अब कभी कभी बात आती है कि अगर जीडीपी सही है तो ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले, लेट्स से एक सब्जी वाला किसी कोने में बेच रहा है कांदा बटाटा या आलू या कह लो प्याज जिसको बोलते हैं, ऑनियन एंड पोटैटो। नाउ वो कैसे इस नेशनल ज्योग्राफी का पार्ट बन गया, नेशनल इनकम का पार्ट बना? क्योंकि वो जहां से आलू लेके आया किसी भी एपीएमसी से, वहां पर वो आलू लिस्टेड है। इस तरह से जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं लिस्टेड है, इसलिए जीडीपी की बात आती है। बहुत सारी बातें हैं जीडीपी को लेकर के, तो आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, ये पढ़ते हुए अपने आप से पूछने चाहिए कि आखिर जीडीपी सही है भी या नहीं। दैट मेक्स यू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स इन टोटलिटी। इस तरह से अगर आप फॉर्मूले में गए कि जीडीपी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री, सो आई कैन नेम 1000 सर्विसेज एंड गुड्स which are directly not the part of income calculation. अब एक अगर नाई किसी गांव में, छोटे से गांव में कोने में रहता है और गांव के 10 लोगों की हजामत करता है, उसका इनकम कहां कैलकुलेट होता है? वो तो इनकम टैक्स भी शायद ना जमा करे, तो फिर उसका इनकम कहां कैलकुलेट होगा? ये क्वेश्चन है। उसका इनकम वहां कैलकुलेट होता है कि जो भी रॉ मटेरियल वो यूज होता है वो कहीं ना कहीं किसी कंपनी का होता है और वहां वो लिस्टेड है। तो इस तरह से जो भी सर्विसेज या गुड्स कहीं पर भी लिस्टेड हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। कमिंग टू नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अगेन इट्स कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, हाउ इट इज डन, एंड एम्प्लॉयमेंट की बात हम यहां पर कर लेते हैं। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स वर्किंग, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। मतलब ये कि एज अ कंज्यूमर और एज अ प्रोड्यूसर, वट एवर सर्टेन चैप्टर्स कम्स, उसको आप कैसे देखते हो? नाउ मनी एंड बैंकिंग, बिकॉज व्हेन मनी कम्स, स्टोरेज कम्स। वी आर इन अ फेज ऑफ यूपीआई, तो व्हेन मनी कम्स, बैंकिंग कम्स। हाउ बैंक इज डिफरेंट from other organizations? Bank is defined something different, but always note, bank is a financial institution which gives you instruments to negotiate. LIC से भी आपको लोन मिलता है, वहां भी पैसे जमा होते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी पैसे जमा होते हैं, वहां से लोन भी मिलता है। पोस्ट ऑफिस में भी आरडी अकाउंट होता है, वहां भी फिक्स डिपॉजिट होता है, और वहां से भी पैसे रिसीव करते हो, आप कर्ज लेते हो। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? अगर आप कहते हो कि बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स एंड लेंड्स मनी, पैसे जमा लेता है और कर्ज देता है, तो ये सारे इंस्टीट्यूशन करते हैं। डिफरेंस क्या है बैंक में? कि आपके पास पोस्ट ऑफिस ने कोई चेकबुक दिया, एलआईसी ने कोई चेकबुक दिया? नहीं। सो बाय एंड लार्ज आप ये ना ऐड करें कि बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
which provides negotiable instruments. negotiable instruments अगर है तो वो बैंक है, क्योंकि उसका चेकबुक आप साइन करके दे देते हो कि पे XYZ. What is that? You are negotiating with your bank to pay someone else, and your bank is bound to value if you have fulfilled all the conditions of bank. So negotiation instrument अगर आपको मिला तो ये पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ का पार्ट है, आज हम सभी लोग यूपीआई करते हैं, हाउ इट वर्क्स. बट कहीं ना कहीं इस यूपीआई तो जस्ट अ गेटवे, कहीं ना कहीं एक बैंक का एग्जिस्टेंस है, इसको समझें. इसके बाद गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी. अभी तक आपने नेशनल इनकम पढ़ा, उसका कैलकुलेशन समझा, लेकिन अब यह समझना है, जिसको फिस्कल पॉलिसी लार्जर इंटरेस्ट में हम कहते हैं, गवर्नमेंट बजट आम भाषा है. फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लाती है बैंक के लिए, और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट लाती है. फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है? इन फिस्कल पॉलिसी द एस्टिमेशन ऑफ गवर्नमेंट्स रिसिप्ट as a guiding body of the development of the nation, and at the same time planned and non-planned expenditure. हम सभी जानते हैं हम हर तरह का खर्च प्लान नहीं कर सकते. इन पर्सनल कैपेसिटी, लेट्स से मेरा होम लोन है, मैं जानता हूं अगले 20 साल XYZ अमाउंट मुझे पे करना है. मेरे बच्चे का स्कूल फी है, वो जानता हूं पे कर दूंगा मैं. क्या मैं जानता हूं कि इस महीने कब मैं बीमार पड़ूंगा और मेरे पैसे खर्च हो सकते हैं? या वर्क प्लेस पर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट होगा और उसमें मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ सकता है. देयर इज नंबर ऑफ थिंग्स, इंपल्स बाइंग एंड थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी प्लान्ड, एंड द सेम वे द गवर्नमेंट इज. तो अब यही क्राइसिस अगर बड़े लेवल पर हो या एक्सपेंडिचर बड़े लेवल पर हो जाए, लाइक कहीं फ्लड आ गया अचानक से, इन्फॉर्म करके आएगा नहीं, तो वो क्राइसिस है, उसमें पैसे देने पड़ते हैं. दैट इज कॉल्ड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर. तो गवर्नमेंट जब अपने रिसिप्ट्स और अपने एक्सपेंडिचर का बैलेंस रखे, हिसाब किताब रखे, आम आदमी की भाषा में यह बजट होता है. और इसमें गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है, कहां खर्च करना है, कितना खर्च करना है, कितने साल का प्रोजेक्ट है. इसमें नीति आयोग से लेकर के और तमाम ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं. तो ये अगर मैकेनिज्म आपने समझा, अब आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर लाइफ. बीइंग हेल्थ कॉन्शियस, हम जानते हैं विटामिन सी का हमारे बॉडी में क्या रोल है. हमें ये नहीं जानना चाहिए कि बजट का क्या रोल है. हम पढ़ते हैं किताबों को बिकॉज एग्जाम में पढ़ना है, तो दिक्कत वही होती है. और जो क्वेश्चन सीवीटी में आए हैं वो डायरेक्ट एप्लीकेशन से रिलेटेड हैं. मैं बता दूं, जो लोग भी थोरो एनसीईआरटी की किताबों को अंडरलाइन करके डिफरेंट कलर से पढ़ रहे हैं, अच्छी आदत है, रिवार्डिंग नहीं हो पाएगी कभी कभी, क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो एप्लीकेशन से पूछे गए हैं. मैं आपको क्वेश्चंस लाऊंगा वहां पर भी. कमिंग टू नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. ये एक हार्डकोर इकोनॉमी चैप्टर है जहां पर आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट, अगेन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, डिटर्मिनेशन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई. हर दिन हम सुनते हैं डॉलर का रेट बढ़ा, डॉलर का रेट घटा. ये मैकेनिज्म क्या होता है, आखिर कैसे डॉलर का रेट घटता बढ़ता है? इसको जब आप समझते हो तो फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हो. अगेन रिसेंट एक्सचेंज रेट के साथ क्या इश्यूज हुए आपको पता होगा. अगर तो 45 जब आपका देश आजाद हुआ तो डॉलर और रुपीस कहीं 3 रुपए के आसपास थे. $1 was equivalent to 3 rupees. 91 में it was 18 rupees, $1, and today it's 80 rupees. तो आखिर ये कौन से बेंचमार्किंग पैटर्न है जो डिसाइड करते हैं? अगर इसमें डीपली आप जाओगे तो कुछ कहानियां मिलेंगी बड़ी प्यारी प्यारी. 91 में जब आपने प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्थात जिसको आप एलपीजी बोलते हो, वो आप लिया, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने आप पर कंडीशन इंपोज किया. सो जितना ज्यादा स्टोरी लाइन में जाकर के आप इकोनॉमिक्स की चीजों को पढ़ते हो ना, दे मेक यू लीव इकोनॉमिक्स
rather than just mugging it up. Now coming to next, India's economic development. So what we are studying? We are studying for the purpose. Whenever a company is run by an entrepreneur, वो अपने लास्ट ईयर का बैलेंस शीट ईयर ऑन ईयर एनालिसिस करता है कि लास्ट ईयर में मेरा क्या हुआ था बिजनेस, इस साल में मेरा क्या हुआ बिजनेस. सो गवर्नमेंट भी तो करेगी ना. और एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, इफ यू आर विलिंग एट ऑल, तो उस केस में आपको भी कल स्टडी करना होगा. ऐसी कौन सी पॉलिसी किस टाइम में ली गई जिसने मास को सबसे ज्यादा फायदा कराया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ा, पॉवर्टी लाइन से ज्यादा लोग ऊपर आए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाए, मनरेगा, एनआरएचएम, न जाने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन. तो वेलफेयर के लिए और डेवलपमेंट के लिए दोनों के काम होते हैं. ये पूरा चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1947 टू 90, एक पीरियड जैसे मैंने आपको कहा कि 91 के बाद पहले चीजें अलग थी, 91 के बाद आपने अपने को ओपन अप किया वर्ल्ड इकोनॉमिक के साथ. तो कैसे स्टोरी लाइन बिल्टअप हुआ, दैट इज योर एर्थ यूनिट. 9th यूनिट इज करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी. इसका एक एग्जांपल देता हूं. इन्फ्लेशन एंड डियरनेस आर वाइडली मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट. बहुत गलत समझा गया है इन्फ्लेशन और महंगाई को. महंगाई क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 रोटी बनाने में मेरा खर्च 10 रुपए आता है और मैं कस्टमर को 15 रुपए में बेचता हूं, तो 5 रुपए का प्रॉफिट मैं लेता हूं. अब मेरा रोटी बनाने का खर्च 10 रुपए ही रहा, लेकिन किसी दिन शहर में खास कारणों से कुछ दुकानें बंद रहीं और उस दिन मैंने रोटियों का प्राइस 30 रुपए कर दिया. दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. सो जो हम इकोनॉमी की किताबों में पढ़ते हैं कि द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स गोज हायर एंड वैल्यू ऑफ मनी कम डाउन, वो सारी चीजें हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकली आप समझो, बिकॉज क्वेश्चंस प्रैक्टिकली पूछे जा रहे हैं. डियरनेस कब है? जब लागत ही उस प्रोडक्ट पर बढ़ जाए. जैसे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, इस वीडियो को शूट करने में कैमरामैन, स्टूडियो, ये सारा एक्सपेंडिचर मेरा लेट से 3000 रुपए आता है. कल होके स्टूडियो रेंट, स्टूडियो वाले का खर्च वही रहे, लेकिन वो मुझसे कहे कि अब 5000 देना होगा आपको. अगर उसका खर्च नहीं बढ़ा तो मेरे चार्जेस क्यों बढ़े? क्योंकि ये इन्फ्लेशन है. और इसीलिए आपने सुना होगा रिटेल इन्फ्लेशन की बात. तो ये एक इशू है. अब दूसरा इशू आजकल जो इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है, दैट इज ऑफ प्रोटीन इन्फ्लेशन. हम इतने ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं कि प्रोटीन और रिलेटेड डाइट्स बढ़े हुए हैं. आरबीआई इज फेसिंग दैट इशू. क्या फेस कर रहा है आरबीआई? यूजुअली हम क्या चाहते हैं, जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी किसी भी प्रोडक्ट की. आज प्राइस भी बढ़ा हुआ है, डिमांड भी बढ़ा हुआ है. दैट्स अ सिचुएशन व्हिच इज स्ट्रेटोस्फ्लेशन काइंड ऑफ थिंग्स, और आरबीआई हैज टू डील. सो इस तरह की जितनी चीजें आप समझ रहे हो, वो करंट चैलेंजेस फेसिंग द इकोनॉमी का पार्ट है. एंड फाइनली ये एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट कर रहा है और इसमें इसका क्या रोल है, दैट इज द पार्ट. नाउ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया. इंडिया का जो एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज एनी एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ, हमारे पास वर्क एक्स है और ये तमाम बातें हम कहते हैं. सो अब हम देखते हैं कि जो भी चैप्टर्स या सिलेबस हमने, ये सिलेबस तो एक आपको याद हो जाना चाहिए. नाउ कमिंग टू उस एस्पेक्ट पर विच आर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. मैंने 2022 और 2023 के क्वेश्चंस लिए, लगभग 12 दिन के पेपर मैंने लिए, 12 स्लॉट्स के पेपर मैंने लिए, और उन 12 स्लॉट्स के पेपर को चैप्टर वाइज एनालिसिस किया. एंड द फाइंडिंग इज देयर ऑन योर स्क्रीन. This is the finding of that 12 papers. National income and related aggregates basic concept and measurement chapter comprises of 5 to 8 questions in your exam paper. Determination of income and employment, यहां से 6 से 9 क्वेश्चन होते हैं. Money and banking 4 to 6. Government budget and economy 5 to 8. Balance of payments 5 to 6.
current challenges facing the Indian economy, poverty, absolute and relative. 4 to 5 questions. So out of 10 units, these 6 units cover around 60 to 70% of the questions. So what you should do? You should be doing one thing which is over here. Read every line of the book as an information to be asked as a question. Why you say that? एक तो आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है। वहां पर आप चैप्टर्स अगर कर रहे हो तो इन इकोनॉमी, ऑल्दो आई गिव यू इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बट नोटिस करो चैप्टर्स से क्या पूछे गए हैं। Since 5 to 6 questions are direct as formulas, so prepare every formula. Why I said that? अब जरा ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको देखिए। ये 2023 का क्वेश्चन है, 21st of May को अपीयर हुआ था फर्स्ट स्लॉट में। Now say it. Certain things are given and now certain equations are given. You have to match it. And see, in one question there are 4 questions. So in economics, that's one of the interesting feature comes कि answering one question you need 4 information. तो NCERT की किताबों को in between the lines पढ़ें। यहाँ मैं recommend करूंगा एक वीडियो, हमारे चैनल पर एक CBET में अच्छा स्कोर करने के लिए पलक तिवारी का एक वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देखिए। उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और मैं आपको बताऊं कि कोई भी बुक का लाइन, because when NCERT writes a chapter, not a single line you can eliminate from that chapter. Every chapter is a piece of information related to that chapter. So every line we have to study. Now coming to the next question. Now set. Arrange the, मैंने कहा ना एक क्वेश्चन में 4 इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं। So एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन की तैयारी करा लेते हैं। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया कब हुए, ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस रिलेटेड टू इंडियाज एक्सटर्नल डेट कब हुआ, एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया कब हुआ। अब इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इज नॉट एन इकोनॉमिक इवेंट, बट ऑफ कोर्स दिस इज द इवेंट विच लेड टू ऑल द इकोनॉमिक इवेंट्स। नोटिस इट। सिमिलरली अब आपको क्या चाहिए? रेफरेंस बुक्स। रेफरेंस बुक्स में आप केवल और केवल एनसीईआरटी की किताबों को देखें। एनसीईआरटी की किताबों से ही क्वेश्चन बने हैं, उनके इंफॉर्मेशन को बेस करके क्वेश्चन बने हैं। एंड वी एट IMS in our courseware and in our videos related to subjects, हम ये इंश्योर करते हैं कि हर मेंटर all possible information from that book receive as a question and share it with you. So irrespective of anything else, a group of mentors, हम बैठ के एक एक लाइन का इन्फरेंस, assumption and fact देख के उस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है, then we give that question into practice tab. एक वीडियो मैं और रिकमेंड करूंगा, हाउ टू यूज IMS पोर्टल, उसको भी आप देखिए, वहां पर आपको बताया जाता है कि कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस के हैं। सो विद दिस मच, वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन सब्जेक्ट मैटर पर जब बात करेंगे तो वो कोई रील तो है नहीं कि वन लाइनर होगा। स्ट्रेटजी की बात करेंगे, टिप्स की बात करेंगे, और इकोनॉमी इटसेल्फ इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक रिलेटेड टू डे लाइफ। फॉर साइंस देयर इज अ लैब, फॉर इकोनॉमी you are the lab, your economic activities are the lab. So in the forthcoming videos, it's the beginning of the series. In the forthcoming videos, there would be an exclusive video how to read NCERT books. We'll try to make you understand, because it's always better to make you learn how to fish rather than offering you fish. हम ये सिखाना चाहते हैं पढ़ना कैसे है,
हम ये नहीं सिखाना चाहते कि क्या पढ़ना है और नोट्स ये बन गया आप पढ़ लो। सीखना कैसे है, जिस दिन ये सीख गए हमारा काम हो गया। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हाउ टू रीड NCERT books for CBT. Thank you.